Hello, I'm Abhishek. In this video, we are going to discuss set 8 of reasoning section of CAT 2019 slot 1 paper. The question was based on tournament, R3 tournament. So the question was like 6 players T, U, W, X, Y, and Z competed in R3 tournament. The tournament had 3 compulsory rounds from 1 to 3. In each round, every player shot an arrow at a target, hitting the center of the target, that is called as bullseye. There's the highest score of 5. The only other possible scores that a player could achieve were 4, 3, 2, and 1. Fine. Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus round. That is round 4 to 6. So these rounds were the bonus rounds, and rounds 4 to 6 were the bonus round. These 3 rounds were the bonus round, and these 3 were compulsory rounds. Fine. Okay. So the possible scores in round 4 to 6, that is in bonus rounds, were identical to the first 3. So the scores could have been 1, 2, 3, 4 or 5 only. Fine. इन्हीं में से कुछ score हो सकता था. Now further information is a player's total score in the tournament was the sum of his scores in all the rounds played by him or her. Fine. The table shows presents partial information on points scored by the player after completion of the tournament. In the table, NP means that the player did not participate in that particular round, while hyphen means that the player participated in that round and the score information is missing. So we can say that this score information is missing, and we can also say that Tanzi does not play round number 5 and 6. So this we can say. Fine. Now further information is given to us. The following facts are also known. T, U, and Y had the same total score. Tanzi, Umiza, and Yonita have the same total score. Total score of all the players except one were in multiple of 3. So all the scores were multiple of 3 except one. Except one. So only one score was there. It was not a multiple of 3. Apart from that score, all the other scores were multiple of 3. The highest total score was one more than double of the lowest total score. Highest is one more than twice that of the lowest. So this is also one of the condition. 4. That number of players hitting bullseye in round 2 was double of that in round 3. So the number of players who hit the bullseye in round 2 was double that of the players who hit the bullseye in round 3. So basically what we want to say is the number of players who scored 5 in this round was double to those who scored 5 in round 3. Fine. Okay. Apart from that, last information is that Tanzi and Zenica had the same score in round 1. So Tanzi and Zenica had the same score in round 1, but different in score in round 3. So they score one different in round 3. So all this information is given to us. Fine. So now what you need to do is just pause the video and try to solve the set. Okay. So let us now try to solve the set. देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. अच्छा, उससे पहले हमने देखा था कि आउट ऑफ दिस 6 स्कोर्स 5 आर ऑफ द फॉर्म 3x, 3 के मल्टीपल की फॉर्म के होंगे. फाइन. एंड 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3. T, U and Y had the same total score. T, U और Y का same total score था. And since we know that all 5 scores are multiple of 3, तो केवल एक स्कोर ऐसा था जो 3 का मल्टीपल नहीं है. So इनका score must be a multiple of 3 only. So let us assume this to be 3a. T, U and Y. इनका score same है. So let us assume the scores are 3a. Total scores for all the players except one were in multiple of 3. The highest score, the highest total score was one more than double of the lowest score. The highest was one more than double the lowest. Fine. Apart from that, the other information is the number of players hitting bullseye in round 2 was double of that in round 3. So the number of 5 scored in round 2, 5 scored in round 2, let me write it like this, was double to that of 5 scored in round 3. Fine. T and Z had the same score in round 1. T and Z had the same score in round 1, but different scores in round 3. तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें गिवन थी. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहां से सेट को स्टार्ट करना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ज़ाइला.
Zyla has played all the 3 bonus rounds. That means उनका हर राउंड में बुलसा स्कोर आया है, तभी उनको बोनस राउंड मिला है खेलने को. That means उन्होंने हर राउंड में she must have scored 5 only. Now the total score of Zaira must be 21 plus something. 21 plus one value is missing. So 21 plus something is the total score of Zaira. Fine. Now we also know that okay, Wangdu has never played any bonus round. उसने कोई भी bonus round नहीं खेला है. So that means Wangdu का कभी भी 5 नहीं आया है किसी भी राउंड में. He has never scored a बुलाए score. तो ये हम क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. Apart from that, we know that Zeneca has played 2 bonus round. तो उनका 2 मैचेस में 5 स्कोर आया होगा. फाइन. ओके. नाउ सी, यहां पर हम बात करते हैं योनिता की. योनिता ने एक बोनस राउंड खेला है, उनके 2 स्कोर्स आर मिसिंग. तो एक स्कोर तो 5 होना चाहिए. अब यदि एक स्कोर 5 है तो द टोटल बिकम 5 plus 5 plus 3 13 plus something. Now this 13 plus something, let this value be a. या तो उनका एक में 5 और a स्कोर आया है. Not a we have already used. Let us assume this to be n. Fine. Now this 5 plus n plus 3 plus 5, that is 13 plus n. Now this must be a multiple of 3. Fine, this must be a multiple of 3. ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि t, u और y का स्कोर is multiple of 3. अब 3 के मल्टीपल के लिए we can assume the value of n to be 2 or it can be 5. But n cannot be equal to 5. Why? Because हम n को 5 वैल्यू दे देते हैं. That means योनिता को 2 बोनस राउंड खेलने को मिलेंगे, बट उन्होंने एक ही बोनस राउंड खेला है. That means उनका एक बार ही 5 का स्कोर आया था. So we can say that the value of n is 2. So from here we can say कि जो इनका स्कोर रहा होगा वो रहा होगा 5 या 2 में से एक, कुछ फर्स्ट राउंड में और दूसरा को सेकंड राउंड में. And the total now becomes 15. Now 5 and 2 7 plus 3 is 10 plus 5 is 15. So the total score of Yonita is 15. Now since the score of Yonita, Tanzay and Umiza are same, so इन तीनों का स्कोर हमें पता चल चुका है. That is equal to 15. तो यहाँ पर भी हम 15 कर सकते हैं, यहाँ पे 15 and यहाँ पे 15. Fine. Now let us talk about the values जो x और y assume कर सकते हैं. See, so total must be equal to 15. Now apart from this we have 5 already over here, 4 already over here. So 9 plus x plus y must be equal to 15. So from here we can say that x plus y must be equal to 6. x plus y की वैल्यू 6 आनी चाहिए और उनमें से एक वैल्यू must be equal to 5. Why 5? Because Tanzi has played a bonus round. बोनस राउंड तभी खेल सकते हैं यहाँ जब आपका 5 स्कोर आया हो. That means यहाँ पर या तो 5 या 1 में से एक वैल्यू आएगी और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आएगी 5 या 1 में से. तो इनका भी टोटल 15 हो गया है. तो let us now remove the additional information जो हम यूज में ले चुके हैं. Okay, so this we have already used. Fine. और ये भी हमने यूज कर लिया है तो इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से. Okay. तो हमको ये भी वैल्यूज पता चल चुकी हैं. और दो 5 कहां पर आएगा, 1 कहां पे आएगा, दैट इज स्टिल नॉट नोन टू अस, बट यस 5 और 1 वाली वैल्यूज ही फिल होंगी यहाँ पे. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, उमेजा का स्कोर इज आल्सो 15, टोटल स्कोर इज 15. उसमें से 3 तो यहीं पर स्कोर हो चुका है. नाउ इन तीनों ब्लॉक्स में कितना आना चाहिए टोटल स्कोर? 12 आना चाहिए. और उन 12 में से भी 2 5 होना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज उमेजा हैज प्लेड 2 बोनस राउंड. इसका मतलब उनका एटलीस्ट 2 टाइम बोनस स्कोर आया होगा, हिटबुल साइज स्कोर आया होगा. तो इनका यहाँ पर 10 हो चुका है और इनको टोटल 15 करना है. 3 पहले से ही था. दैट मींस इनका एक और राउंड में 2 स्कोर आया होगा. ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ इसको. सी, यहाँ पर उमेजा हैज ऑलरेडी स्कोर्ड 3, उनका टोटल 15 होना चाहिए. तो जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज है उनका सम मस्ट बी इक्वल टू 12. उन 12 में भी 2 5 होना जरूरी है. तो 2 5 होंगे तो फिर लास्ट वैल्यू मस्ट बी 2 ओनली. तो हमको ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होने वाली हैं. वो वैल्यूज 5 5 और 2 होने वाली है. ऑल्दो उनका ऑर्डर हमें नहीं पता है, बट द वैल्यूज आर दीज ओनली. ये हमको पता चल चुका है. फाइन. अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ की जेनिका की. जेनिका ने 2 बोनस राउंड खेले हैं
इसका मतलब उनका टोटल कितना हो चुका है 10 पहले है, इनका बोनस राउंड का स्कोर है 10 तो, और इन्होंने फर्स्ट 3 राउंड्स में भी 2 बार 5 स्कोर किया होगा, इन्होंने फर्स्ट 3 राउंड में भी 2 बार 5 स्कोर किया होगा, और एक बार मैं अज्यूम करता हूं इन्होंने लेट्स से m अज्यूम किया स्कोर किया, तो इनका टोटल स्कोर कितना हो गया 20 प्लस m, 20 प्लस m 4 टाइम्स तो इनका 5 आया है और एक बार m आया है। So now see, this score is 15, this is 15, ये 15 है, ये 20 plus something है, this is 21 plus something. So I think the lowest score must be this one. एक बार चेक करते हैं ये lowest score हो सकता है क्या? वांगड़ू ने एक भी बोनस राउंड नहीं खेला है, that means उनका कभी भी 5 नहीं आया है। तो वांगड़ू का कभी भी 5 नहीं आया, तो मैक्सिमम वैल्यू यदि हम इनको 4 भी दे दे तो भी इनका 12 ही होगा, जो कि मिनिमम ही रहने वाला है। So this is the lowest score we can say. वांगड़ू का लोएस्ट स्कोर है। नाउ सी, वांगड़ू का लोएस्ट स्कोर है, तो व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट वांगड़ू कैन स्कोर? वांगड़ू कैन स्कोर 4 plus 1 plus 1, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो एल मिनिमम इज 6 एंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट वांगड़ू कैन स्कोर इज 4 इन ईच ऑफ द राउंड्स। वो 5 तो स्कोर कर नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक भी बोनस राउंड नहीं खेला है, तो मैक्सिमम इज 12। फाइन, तो ये दो वैल्यूज हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम उनकी हो सकती है। नाउ करस्पॉन्डिंगली जो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है, h अब देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, इधर 20 प्लस दिस और 21 प्लस दिस। फाइन, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हाईएस्ट हो सकती है। तो सपोज ज़ायला की हाईएस्ट वैल्यू है तो 21 प्लस समथिंग है। फाइन, अब नाउ यहां पर हमें देखना है कि व्हेन L मिनिमम इज 6 तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into L plus 1 दैट इज 13, और H की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 12 plus 1 दैट इज 25। नाउ सी, H इज समथिंग व्हिच इज 21 प्लस कुछ और स्कोर आने वाला है, या फिर 20 प्लस कुछ और स्कोर आने वाला है। अब हम देखेंगे कि H की क्या क्या वैल्यू हम अज्यूम कर सकते हैं। व्हेन H इज 25, जब H 25 होता है तो L को कितना होना पड़ेगा, इस इक्वेशन से देखेंगे तो L मस्ट बी 12 विच इज पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल है, यहां पर हम 4 का स्कोर दे देते हैं ज़ायला में, यदि वी गिव अ स्कोर ऑफ 3 तो ये पॉसिबल है। फाइन, यहां पर हम यदि H को लेट अस अज्यूम 24 तो H इज ऑफ द फॉर्म 12 प्लस 1, तो H तो ऑड होना चाहिए, तो H को कभी भी हम इवन वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो H की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 24 तो नहीं हो सकती है। फाइन, नाउ लेट अस अज्यूम H वाज 23, H 23 होता है तो L विल बी 11। फाइन, यूजिंग दिस इक्वेशन, बट देन हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है, एंड एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैव ओनली वन सच नंबर व्हिच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी हम केस नहीं ले सकते हैं। फाइन, H22 अगेन इज नॉट पॉसिबल, H21 हो ही नहीं सकता है बिकॉज 21 प्लस समथिंग है, so highest value cannot be equal to 21, so I think the only possible case is this, highest value is 25। now यदि हम यहाँ पर 25 देते हैं तो which is again not possible, जेनिका को हम 25 नहीं दे सकते हैं, रीजन बीइंग जेनिका का 25 करने के लिए तीनों राउंड्स में 5 देना पड़ेगा, और तीनों राउंड्स में यदि हम 5 दे देते हैं तो उनको बोनस राउंड भी फिर 3 खेलने चाहिए थे, जबकि उन्होंने बोनस राउंड 2 ही खेले, इसका मतलब उनका तीनों में 5 तो स्कोर नहीं आया। Now we can say that the highest value is that of Zyla and that is 25, and the lowest value is that of Wangdu and that is 12, है ना। अब Zyla की 25 करने के लिए we have 5 5 5 5 21 we have already there, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो that will make the value total value of Zyla to be 25। यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं, और L की जगह we can write how much, 12। This is lowest value, this is the highest value। Fine, now तो आपने देखा कि ज़ायला का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वांगड़ू को 12 स्कोर देना है। नाउ 12 इज पॉसिबल, जब एक में 4 है तो 2 में मिलाकर 8 होना चाहिए, तो दिस से B प्लस C मस्ट बी इक्वल टू 8। अब B प्लस C की वैल्यू 8 कब कब पॉसिबल है, इधर 3 और 5 विल मेक इट 8, और 4 और 4, है ना, 6 इज नॉट देयर, तो ओनली दीज टू आर द पॉसिबल केसेस, उसमें भी 3 और 5 नहीं हो सकता है बिकॉज वांगड़ू हैज नॉट प्लेड एनी ऑफ द बोनस राउंड, इसका मतलब उनका 5 स्कोर कभी नहीं आया,
So that means the score of Wangru are 4, 4 and 4 only. यहाँ से हम कह सकते हैं, and I am removing the additional information जो हम use कर चुके हैं. So this we have already used. This also we have already used. इन सबको remove कर देते हैं. Okay. So the score of Wangru is 4, 4 and 4 in each of the round. ये भी हमने fill कर दिया. Fine. So now हमें क्या क्या information use करना बचा है वो हम एक बार देखते हैं. Okay. So अभी जो information use करना बचा है that is all the values are multiple of 3 except 1. So देखिए आपने देखा कि top 5 values में से एक value मिल चुकी है, that is not multiple of 3. Now that this 20 plus m है, this must be a multiple of 3, है ना. ये 3 का multiple होना चाहिए और ये 3 का multiple होगा तो the value must be either 21 or 24. Total value of Zeneca must be 21 or 24. Now see, यहाँ पर हम बात करते हैं in round 1 the value of Tanzi and Zeneca were same and in round 3 these were different. ये हमको दे रखा है. Fine. तो यदि round 1 में इनकी value same है तो क्या हम इनको 5 और 1 में से कोई एक वैल्यू दे सकते हैं? अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन अभी बची हुई है. द नंबर ऑफ 5 स्कोर्ड इन राउंड 2 वाज डबल दैट स्कोर्ड इन राउंड 3. तो देखिए आप राउंड 3 में यदि हम 2 5 ले लेते हैं तो राउंड 4 में हमको 4 टाइम्स 5 करने पड़ेंगे. राउंड 3 में यदि हम 1 5 लेते हैं तो यहाँ पर 2 5 लेने पड़ेंगे. तो इस तरह से हमें केस कंप्लीट करना पड़ेगा. फाइन. अब हमको ये वैल्यूज जो बची हुई है वो फिल करनी है. अभी उमेजा का ब्लॉक फिल करना बचा हुआ है. वी हैव कंफ्यूजन इन तांजी एज वेल. 5 और 1, 1 और 5 में कंफ्यूजन है. उसके अलावा जेनेका की वैल्यूज फिल करना बचा हुआ. फाइन. नाउ सपोज हम यहाँ पर 5, 5 और 2 ले लेते हैं. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर 5, 5 एंड 2. तो 5, 5 एंड 2 ले लेते हैं. तो यहाँ पर हाउ मेनी 5 डू वी हैव? अच्छा, ये जो अज्यूम कर रहे हैं, let me use some different type of thing for this, जिससे हम पता कर पाए कि हमने क्या assume किया था. I am assuming 5 over here, 5 over here and 2 over here. Now the total has become 15. यहाँ पे 15 हो चुका है. अब यहाँ पर आप देखेंगे we cannot have 3 5s. राउंड 3 में यदि 3 5 हो जाते हैं तो उसका डबल 6 5 हमको राउंड 2 में करने पड़ेंगे, which is not possible. That means the maximum number of 5s in round 3 is 2 only. अब यहाँ पर 1 और 2 हो चुके हैं. That means यहाँ 5 नहीं आ पाएगा, यहाँ 5 नहीं आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पर 5 आएगा. Now if यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ पर भी 5 आएगा because these two values are same. Fine. और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है. तो here it must be 4 then और एक बचा हुआ 5 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. अब now we have how many 5s in round 3? We have 2 5s. 2 5s है तो राउंड 2 में हमारे पास 4 टाइम्स 5 होना चाहिए था. 1 5 2 5 3 5 we already have. एक 5 हमको यहाँ रखना पड़ेगा और उस केस में 2 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. तो अब हम चेक करते हैं सारी जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है. द टोटल ओवर स्कोर ओवर हियर इज 15. ये करेक्ट आ रहा है. द टोटल स्कोर ओवर हियर इज आल्सो 15. यहाँ पर जो नंबर ऑफ 5s हो रहे हैं दैट इज 1 2. तो इन राउंड 2 देयर मस्ट बी 4 5s. तो 1 2 3 4 5s भी हो रहे हैं. ये भी कंडीशन सही आ रही है. ठीक है. तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड नाउ. ये कब हुआ है? जब हमने यहाँ पे 5 अज्यूम किया. अब यदि हम यहाँ 5 अज्यूम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी. तो नाउ वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस सेट. हमने जो भी कंडीशंस थी सारी सेटिस्फाई हो गई हैं और यहाँ जो इनका टोटल स्कोर आ रहा है जेनेका का दैट इज 24. ये भी हम कह सकते हैं. तो लेट मी राइट दिस वैल्यू प्रॉपर्ली. So here it is 5, here it is 1. Okay, so here it is 5 और यहाँ पर 1 है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर we have 5 5 and 4. So here we have 5 5 and 4. Here we have 2 and then 5. Two and then 5, and the final value over here will be okay. So the final value over here will be how much? 5 5 5 5 and 4 is 24. Fine.
ये वो केस था जब हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि here it is 5 और यहाँ पर 2 है। एक केस हम एक बार और अज्यूम करके देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर 5 नहीं होता तो, सपोज यहाँ पर 5 नहीं होता तो यहाँ पर 2 होता, सपोज 2 होता, उस केस में यहाँ पर और यहाँ पर 5 होता, यहाँ का टोटल अपना 15 हो चुका होता, यहाँ पर 1 और 5 में हमारे पास ऑप्शन था, फाइन। यहाँ पर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और यहाँ पर वी हैड द ऑप्शन, यहाँ पर 5 आ सकता था, ठीक है। अब उसमें भी हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि सपोज यहाँ पर हमने 5 वैल्यू दे दी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 हो चुकी है, यहाँ 1 हो चुकी है, हमको पता था ये और ये वैल्यू सेम है, दिस वाज गिवन टू अस, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए था। अब यहाँ पर 1 आ जाता, उस केस में क्या होता, हमारे पास जो 2 5 रखने थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, एक 5 को हमें यहाँ प्लेस करना पड़ता। तो जो कंडीशन थी कि दिस कंडीशन T and Z had the same score in round 1 but different in round 3, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती, ठीक है। यहाँ पर यदि हम 5 प्लेस कर देते, आपने देखा कि यहाँ हमने 1 किया तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों का सेम स्कोर था, और उस केस में क्योंकि हमको यहाँ 2 5 फिल करने थे तो यहाँ पर भी 5 आता, तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम स्कोर हो जाता, तो ये ऊपर वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती। इसका मतलब जो हमने कंडीशन प्लेस की थी वो परफेक्ट थी, दूसरी कंडीशन नहीं हो पाई। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन टू दिस सेट। Fine. Now let us move to the questions part. Let me remove the additional information which we do not require now. Okay, तो इसको हटा देते हैं। Now first question. What was the highest total score? So highest total score was 25, that of Xyla. Answer is 25. Moving to second question of this set. What was Zenika's total score? Zenika's total score was 24. Fourth option. Third is, which of the following statement is true? Zenika's score was 23. Sorry. Okay. Question number third. So Zenika's score was 23. No. It was 24. Zenika was the highest scorer. No. Highest scorer was Xyla. Xyla was the highest scorer. Yes, this is correct. Xyla's score was 23. No, this is also wrong. So the correct answer is option C. Last question of this set. What was Tanzi's score in round 3? Score of T in round 3 is 1. So the correct answer is option A. Fine. So this was very decent set. I hope आप लोग को ये clear होगा. Thank you.